Shaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and kind. Assalamu alaikum to all of you. I am your biology teacher, Ma'am Sabina Nazakat, and I hope that you all are fine and good at your home. I welcome you all in the Google online classes. Dear students, as we start our topic, but before that, we discuss some important things that are related to your topic. So dear students, as you know that in our previous class we studied about digestion. So what is digestion? Your answer must be the breakdown of large, complex and non-diffusible food molecules into smaller, simpler and diffusible molecules by the action of enzyme is called digestion. And what are the enzymes? Enzymes are the biocatalysts that speed up the chemical reaction. And what is digestive system? The organ system that involves in the breakdown of complex food into simpler ones is called the digestive system. And what are the different type of digestion? There are two basic type of digestion. So what is mechanical digestion? Your answer must be physical breaking the food or physical breaking down of the food into smaller pieces is called mechanical digestion, in which the organs are involved directly. While what is the chemical digestion? The chemical digestion is the breaking down of the food into simpler nutrients that can be used by the cell, and in which the chemicals or secretion of different organs are used for the digestion. So this is called the chemical digestion. So students, we all are familiar with the digestion and digestive system. So you all are familiar with the parts of digestive system, and you all knows that digestive system, there are different parts of digestive system that include oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. So students, today our topic is about the further more details that we left in our previous lecture. So today we will discuss the other part. So today we discuss the other part of the digestive system that are remaining. So today our topic is again about the parts of the digestive system, or the digestive system is our major topic in our today's lecture. So the remaining parts that are left in the previous lecture, we start from that. And you all knows that we studied about the oral cavity, pharynx and a little detail of esophagus in the previous lecture, and today we study in detail about esophagus, stomach and small intestine. So students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ही है. जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया था और कुछ रिमेनिंग थे, तो आज हम उन्हीं रिमेनिंग पार्ट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे. ऑरल कैविटी और फेरिंग्स के बारे में तो आप पढ़ चुके थे, तो इसोफेगस से आज हम स्टार्ट लेंगे और आज हमारा टॉपिक जो है वो हम पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इसोफेगस? यू ऑल नोज दैट. अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसोफेगस क्या है. तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जब हम इसोफेगस की बात करते हैं तो इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो कि फेरिंग्स से एक्सटेंड करके स्टमक तक जाती है, और इसकी मदद से माउथ जो है वो आपके स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है. सो स्टूडेंट, व्हाट इज इसोफेगस? इट इज़ अ वेरी लार्ज मस्कुलर ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक, एंड वी ऑल्सो कॉल्ड इसोफेगस एज वेंट पाइप. वी ऑल्सो कॉल्ड इसोफेगस एज food pipe. We also call esophagus as food pipe. So what is the another name that we use for esophagus? That is the food pipe. And what is the structure of the esophagus? Is a long muscular tube that extending from the pharynx to the stomach, and it connected the pharynx to the stomach. अगर स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देखें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स आपको दिए गए हैं. इसमें आप इजीली इसोफेगस को देख सकते हैं कि ऑरल कैविटी के बाद फेरिंग्स है, और फेरिंग्स आगे आके जब खुलता है तो वो इसोफेगस की लॉन्ग ट्यूब में ओपन होता है, और ये लॉन्ग ट्यूब जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर जाके ख़त्म कहाँ पे होती है? स्टमक पे. सो ये देखें, फेरिंग्स और
जो आपके पास स्टमक है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इस ट्यूब से, जिसको हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ईसोफेगस. सो स्टूडेंट्स, यू सी इन दिस डायग्राम दैट द ईसोफेगस इज़ द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द pharynx with the stomach. So today we will discuss in detail about it. एंड उसके बाद आपको ईसोफेगस की जो ट्यूब है उसकी लेंथ का पता होना चाहिए कि उसकी लेंथ कितनी होती है. तकरीबन 10 इंचेस लॉन्ग होती है, जो कि थ्रू आउट नेक से लेके थॉरिक्स तक जाती है, जो कि ट्रेकिया के और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में पाई जाती है. और जो फूड पास होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? द प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस. और आपको पता है पेरिस्टाल्सिस क्या है कि जिस वक्त फूड जो है वो बैकवर्ड मूव करता है, आपकी ये जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं फेरिंग्स की, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जिस वक्त फूड जो है वो कॉन्टीन्यूसली बैकवर्ड मूव करता है, तो इस जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस. ठीक है, तो पेरिस्टाल्सिस की मदद से फूड जो है वो इजीली मूव करता है. लेकिन सम टाइम क्या होता है कि ईसोफेगस या स्टमक के अंदर इरिटेशन काज होती है, जिसकी वजह से जो आपकी पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट है वो रिवर्स हो जाती है या उलट हो जाती है और आप वॉमिटिंग कर देते हैं. तो वॉमिटिंग का जो फेनोमेना है वो रिवर्स है पेरिस्टाल्सिस के, क्योंकि उसमें आपका फूड बैकवर्ड जाने के बजाय फॉरवर्ड जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ आता है और आपको वॉमिटिंग होती है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस. सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द esophagus? It is about 10 inches long tube, and where it is run where it is lies, it is run through the neck and thorax between the trachea and vertebral column. And how the food is passed through it? The food is passed through the phenomena of peristalsis. And what is peristalsis? It is the backward movement of food due to the contraction and relaxation of the muscular wall of the food. So what happened when sometime there is irritation in the stomach or esophagus? Sometime due to irritation in the stomach and esophagus, the process of peristalsis is reversed and vomiting occurs. So what we call this process, we call the reversal of peristalsis, we called it antiperistalsis or vomiting. और स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है. और आपको मैं ये बात बता दूं कि जैसे जैसे आप ये सारे टॉपिक जब भी पढ़ेंगे तो आपने साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को स्किप नहीं करना. तो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो लिखी थी कि यूवोला जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है. स्वॉलिंग के बाद जो यूवोला होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है कि फूड की जो बैकवर्ड एंट्री होती है नेज़ल कैविटी में, उसको रोकने के लिए ये पार्ट जो है वो मौजूद होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं यूवोला. ठीक है, यूवोला. और इसका काम ये होता है कि ये बैकवर्ड जो फूड की मूवमेंट है नेज़ल कैविटी के अंदर उसको प्रिवेंट करता है. सो स्टूडेंट, ड्यूरिंग स्वॉल्विंग the soft palate and the uvula move superiorly to close to the nasopharynx, so it prevents the food from entering in the nasal cavity, as the epiglottics prevent the movement of food into the air pipe. So that's why just like the same, uvula do the same function. So you must have to write the scientific information. So this is for your information. Now अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो क्या है स्टमक. अब जो सैक लाइक या थैले की तरह का ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं स्टमक. सो स्टूडेंट, व्हाट इज द स्टमक? इट इज़ द सैक लाइक ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. वी कॉल्ड इट स्टमक. और स्टूडेंट्स, अगर आप स्टमक को देखना चाह रहे हैं तो ये ईसोफेगस जो है वो आगे एक थैले की शक्ल नुमा एक ऑर्गन होता है, उसमें आके खुलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टमक. सो व्हाट इज़ द स्टमक? स्टमक इज़ बेसिकली इट इज़ द सेक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ प्रेजेंट बिलो द ईसोफेगस. अब स्टूडेंट, स्टमक जो है वो कहाँ पे उसकी लोकेशन है या कहाँ पे वो हमें नज़र आता है? ईसोफेगस और जो इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ पे दरमियान में जो थैले की तरह की स्ट्रक्चर होती है वो ईसोफेगस, वो स्टमक होता है. तो स्टमक कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस और इंटेस्टाइन के दरमियान में. और होता कैसा है स्टमक? ये एक मस्कुलर, इलास्टिक और बिल्कुल पियर शेप बैग होता है, जो कि डायाफ्राम के बिल्कुल पीछे आपके पास, बीनीथ, नीचे आपको
मिलेगा। और आपको पता है कि डायाफ्राम जो है वो आपके ब्रीदिंग सिस्टम में हेल्प आउट करता है। डॉम्बेल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसकी मूवमेंट से एयर अंदर भी आती है और बाहर भी जाती है, जिससे चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है और फिर रिलैक्स भी होती है। ठीक है, तो ये जो डायाफ्राम है उसके बीनीथ जो है वो आपको मिलेगा ये जो स्टमक है। और इसकी अगर आप बात करें लेंथ की तो ये हमारे पास 12 इंचेस इसकी लेंथ है और 6 इंचेस इसकी विड्थ है स्टमक की। और जहाँ पे स्टमक जाके बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है, वाइल्ड हो जाता है, खुला हो जाता है, वो तकरीबन लेंथ उसकी वहाँ पे कितनी आ जाती है, 6 इंचेस आ जाती है। और आपके स्टमक की कितनी कैपेसिटी है कि वो तकरीबन 1 लीटर तक फ्लूइड जो है अपने अंदर स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। और हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ जो है वो कार्डिक स्पिंचर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब वो जगह, वो जंक्शन जहाँ पे ईसोफेगस और स्टमक जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कार्डिक स्पिंचर्स कहते हैं। कार्डिक स्पिंचर का मेन फंक्शन क्या है कि ये पीछे की तरफ फूड की बैकवर्ड फ्लो को जो है वो रोकने में हेल्प आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, where the stomach is located, it is located between the esophagus and the intestine. And what type of structure stomach have? It is a muscular, elastic and pear-shaped bag beneath the diaphragm. What is the length and width of the stomach? The stomach is 12 inches long and 6 inches wide at its widest point. And what is the capacity of the stomach? It is about 1 liter. So what are the special type of muscles that are present at the junction where the esophagus and stomach meet together? At the junction of the esophagus and stomach there are muscles which we call cardiac sphincters that are present. And why they are present? What is their function? In order to prevent the backward flow of the food. So students, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके पास स्टमक है और ये स्टमक के अपर और लोअर साइड पे स्पिंक्चर मसल्स मौजूद होते हैं। ऊपर वाले साइड पे जो स्टमक और ईसोफेगस के दरमियान जो स्पिंक्चर्स होते हैं उनको हम कार्डिक स्पिंक्चर्स कहते हैं, जो कि ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान में ये मसल्स पाए जाते हैं ताकि फूड इधर से पीछे ना जाए। लेकिन एक दफ़ा फूड जब आगे आ जाता है तो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान भी एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्चर मसल। इसका काम ये है कि ये भी जो है वो दोबारा से इंटेस्टाइन से पीछे स्टमक की तरफ फूड की मूवमेंट को जो है वो बैकवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, there are two types of muscles that are present at the junction where the esophagus and stomach meet. We call it cardiac muscles, cardiac sphincters. Why? Because it prevent the backward flow of the food. And at the junction of the stomach and the intestine, which muscles are present? These are the pyloric muscles. These are present. And why they are present? In order to avoid the backward, in order to stop the backward movement of the food. So अगर आपने जो आपके पास स्टमक है उसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं स्टमक के अंदर। और अगर इसका छोटा सा सेक्शन हम खोल के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स हैं जो कि स्टमक प्रोड्यूस करता है और म्यूकस भी सिक्रीट करता है। ये देखें, ये म्यूकस सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी ये सिक्रीट करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये एंजाइम जो है वो सिक्रीट करता है जिसको हम पेप्सिनोजिन कहते हैं, जो कि इसके सेल सिक्रीट करते हैं। तो अगर इंटरनली देखा जाए तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन की। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू सी the internal structure of the intestine, if we see the small section of the intestine, you can see that there is the here is the pore of the gland, and here the mucus is secreted inside the stomach, and here the HCl is also secreted inside the stomach, and here the enzymes are also secreted in the stomach which we call pepsinogen. सो अगर हम वॉल्स की बात करें तो हमारे पास जो स्टमक की वॉल्स हैं वो कैसी होती हैं? थिक होती हैं और मस्कुलर होती हैं। और एक दफ़ा जब फूड जो है वो स्टमक के अंदर आ जाता है तो उसकी वॉल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं ताकि फ़ूड की चर्निंग हो सके, यानी कि फ़ूड मज़ीद जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह की डाइजेशन को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ दी फूड। और इस मैकेनिकल डाइजेशन के दौरान हीट भी प्रोड्यूस होती है और इसी हीट को यूज़ किया जाता है जो कि
फूड के अंदर लिपिड्स होती हैं उनकी मेल्टिंग होती है इस हीट की वजह से। सो स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट द वॉल्स ऑफ द स्टमक? द वॉल्स ऑफ द stomach are the thick and muscular. So what happened when the food entered into the stomach? The stomach start contraction. And why it start contraction? In order to churn or break down the food into smaller pieces. So by which process the food is converted into smaller pieces? This is called mechanical digestion, through the mechanical digestion. And what happened when mechanical digestion take place? Then heat is also produced. And how this heat helps in the digestion of the food? That this produced heat melts the lipid that is present in the food. So that's why it is important. अब स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने ये कहा है कि स्टमक की इनर वॉल्स जो होती हैं वो हमारे पास जूसेस सिक्रीट करती हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी बताया है, और उनको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। इनर वॉल जो होती है स्टमक की, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है, पेप्सिनोजेन एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट द इनर वॉल ऑफ द स्टमक? द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस द जूसेस विच वी कॉल द गैस्ट्रिक जूसेस। एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक juices? That there are different type of substances present in the gastric juices that include mucus, pepsinogen enzymes एंड ऑल्सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है जिसके अंदर म्यूकस भी होगा, पेप्सिनोजेन एंजाइम भी होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होंगे, जो कि मैंने आपको डायग्राम से क्लियर किया है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका क्या काम होता है कि ये जो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी हुई होती है, इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है, और इसको चेंज कर देता है एक्टिव फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं? पेप्सिन। अब पेप्सिन जो होती है उसका क्या काम है कि ये क्या करती है? ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, और छोटे छोटे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है प्रोटीन को, जिनको हम पेप्टाइड्स कहते हैं। और इसके अलावा इसका काम ये भी है कि ये बैक्टीरियाज को भी किल करती है। और फूड जो है इस स्टेज पे जब वो स्टमक में आके जब उसकी फर्दर डाइजेशन हो जाती है तो एक सूप की तरह का थिक फ्लूइड की फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ठीक है। और जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होती है वो इनर लाइनिंग में स्टमक के जो है वो मौजूद होती है। ठीक है। तो म्यूकस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस जो है म्यूकस जो होता है वो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, जो कि कोटिंग जो है इनर जो स्टमक की कोटिंग होती है वहाँ पे, जहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होता है वहाँ पे साथ म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, what type of things that are present in the gastric juice? It include mucus, it also include pepsinogen enzyme, and it also include hydrochloric acid. What is the function of hydrochloric acid at HCl? It convert inactive pepsinogen into a active enzyme which we call pepsin. So what is the function of the pepsin? That it broken down the protein into a amino acid which we call peptide. And what is the other function of these? They also kill bacteria. And when the food is digested in the stomach, then it is converted into which form? It is converted into chyme. And what is chyme? It is a thick soup like structure or soup like fluid which is present. And mucus, where the mucus is present, mucus is also present along with the gastric juice in the inner walls of the stomach. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने ये कहा है कि जो म्यूकस जो होता है वो भी स्टमक वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन वो क्यों प्रेजेंट होता है? इसका काम ये होता है कि ये जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती हैं उन्हें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन की जितने भी हमारे पास एक्शंस होते हैं या उनके जो HCl है या पेप्सिन है उनका एंजाइमेटिक एक्शन जो है उससे प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक को, इसलिए म्यूकस प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, वाई द म्यूकस इज प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक? बिकॉज it protect the inner lining of the stomach from HCl and pepsin from their enzymatic action of HCl and protein. अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक जाके खुलता है या ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये नैरो और कॉइल्ड यानी कि मुड़ी हुई ट्यूब होती है, और ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ट्यूब होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और इसके कुछ हिस्से होते हैं। इसका पहला हिस्सा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडिनम कहते हैं। तो
उसको पहले पार्ट को ड्यूडिनम कहते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ड्यूडिनम 12 इंचेस लॉन्ग होता है और कर्व लाइक सी इसकी शेप होती है, और ये काइम रिसीव करता है स्टमक से, और काइम जो है उसके साथ फिर यहाँ पे बाइल भी मिल जाती है। बाइल जो है वो लिवर दे देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को के अंदर, फूड के साथ मिक्स हो जाता है, और पैंक्रियाटिक जूस जो है वो पैंक्रियाट सिक्रीट करता है, जो कि यहाँ इंटेस्टाइन के फर्स्ट हिस्से में आके इसके साथ मिल जाता है, और दोनों जो हैं अल्कलाइन सिक्रीशंस होती हैं। So students, what is the next part after the stomach? That it is a small intestine. So where the small intestine open, where the stomach open into the small intestine. And what is small intestine? It is a large elongated narrow coiled tube, and it is the largest and it is the longest and important part of the human digestive system. So what is the first part of small intestine? It is duodenum. It is the first part of the small intestine. And what is its length? It's about 12 inches long. And what is its shape? It is curved like and C-like shape, and it receive chyme from the stomach. And where the bile come from in the intestine? It come from the liver. And where the pancreatic juice come from? It come from pancreas, and both are alkaline in nature. So what is liver? Liver is the, उसके बाद next जो हमारे पास liver जो हमारे पास secretions अपनी डालता है, तो लिवर जो है वो हमारे पास ग्लैंड कहलाता है, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है? लिवर होता है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लिवर जो है उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, जिसकी 2 लोब्स होती हैं, ठीक है। और लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है, और वो फिर स्क्रीट हो जाती है। और ये बाइल जो होती है स्टोर होती है गॉल ब्लैडर के अंदर और स्क्रीट हो जाती है ड्यूडिनम के अंदर एक डक्ट के ज़रिए से, जिसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और बाइल क्या चीज़ होती है? ये ग्रीन अल्कलाइन लिक्विड होता है, जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। और बाइल के अंदर क्या क्या होता है? वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसके अलावा एक्सेस ऑफ कैल्शियम होता है, और साथ साथ जितनी भी प्रोडक्ट हीमोग्लोबिन की जो ब्रेक डाउन हुई हुई होती हैं वो मौजूद होती हैं। और ये हमारे पास लार्जेस्ट फैट्स को जो है स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन। सो स्टूडेंट, व्हाट इज द लिवर? लिवर इज द लार्जेस्ट रेडिश ब्राउन ग्लैंड. It is consist of 2 lobes, and bile is produced by which organ? It is produced by liver. And where it is stored? It is stored in the gallbladder and secreted in the duodenum through the common bile duct. So what is bile? It is a green alkaline liquid without any enzyme. And what is the composition of the bile? It consists of water, sodium bicarbonate, excess of calcium, and the breakdown products of hemoglobin. And what its function? It break down fats into smaller droplets. And what we call this process? We call this process as emulsification. Now students, I sum up my lecture. Today we studied about the digestive system, that you all know that digestive system convert the large food molecule into simpler one. What are the different parts of the digestive system? And you all are familiar with the parts of digestive system that include esophagus, oral cavity, pharynx, stomach, small intestine, and large intestine. Today we will studied about the esophagus, that it is a long tube. Esophagus is basically a long muscular tube, and due to its peristaltic action the food is moved backward, and the esophagus is also called the food pipe. It is a muscular tube extended from pharynx to the stomach. And what is its length? It's about 10 inches in length, which is present between the neck and thorax, between the trachea and vertebral column. And when the food is and when sometime due to irritation in the esophagus and stomach, the process of peristalsis is reversed, which is vomiting. We called it anti-peristalsis. Okay. Now we also studied about the another organ, that is the stomach. It is a sac-like bag which is present, and where it is located? It is located between esophagus and intestine. It is a muscular elastic pear-shaped bag, and which is 12 inches long and 6 inches wide. So there are the muscles that are present in order to prevent the backward flow
flow of the food, we call them cardiac sphincters, and the digestion that occur in the stomach due to we called it mechanical digestion, and the food that is converted into a thick soup-like structure which we call chyme, soup-like fluid which we call chyme. And what is the small intestine? Small intestine, the stomach open into the small intestine. It is a narrow longest tube, and it is the important part of the digestive system. And what are the part of the small intestine? That is duodenum. It is the first part of the small intestine where the liver secrete bile, which is also mixes with the food, and it acts as a digestive gland. A liver is the largest digestive gland, and that help in the further digestion of the food, which we call emulsification. So students, your homework is to learn and write the lecture neatly and cleanly from page number 167 and 169. You also take guide and help. Do your work neatly and cleanly, क्योंकि आपको पता है 50% marks आपके as a detention consider किए जाएंगे, तो do your work neatly and cleanly. Thank you very much.